In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 1 for the subject of English, and we are going to start unit number 20. The name of this unit is People and Places, and this is first lecture from unit number 20. And in this lecture we will cover reading, explanation, and I will give you the words or meanings of difficult words, and then we will cover the first section of exercise, which is question answers. As you all know that I will give you the meanings of difficult words and you have to write them down in your notebook. Then I will give you the answers of questions and you have to write them in your notebook. So you have to prepare your classwork notebook page. So prepare it and prepare your index properly by writing serial number, date and topic. Grade 1 students, before we begin this lecture, you have to pick your English students book, your complete stationery and your English classwork notebook with you. I am sure that you are listening all the lectures very carefully and attentively, and I hope that you are doing your all classworks and homeworks. So let's begin our today's lecture with the reading of unit number 20. Open page number 111 where the unit number 20 begins, and the name is People and Places. In this unit we are going to learn about Ali's family and his society. We will learn that how many people are there in his family and what are the places in his society. As you can see in this animation, there are some buildings, there are roads, there are trees, there are some kinds of transports, and you have some understanding about the buildings and the places in any society. In this lecture we will learn more. There are four main headings in this lesson. The first is the school. Ali goes to school. His teacher name is Miss Sana. She is very helpful for all students. Then another heading is the store, where Ali goes to shop things. Then another heading is the health center, which is a kind of hospital where they go for their checkup. And the last heading is about bank, hairdresser and gas station. So let's start reading page 111. The words and their meanings will be shown here on screen. You will have to write them down in your English classwork notebook. So let's begin. People and places. ओके यहाँ people and places के साथ एक एरो बना हुआ है जिसके साथ लिखा हुआ है टाइटल. क्या लिखा है? टाइटल. डू यू नो व्हाट डज टाइटल मीन? टाइटल कहते हैं किसी भी चीज़ का जो मेन टॉपिक होता है, सबसे मेन टॉपिक, उसको कहते हैं टाइटल. तो इस पूरे लेसन का एक्चुअली टाइटल क्या है? पीपल एंड प्लेसेस. देयर आर सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस नियर अलीज हाउस. अली के हाउस के पास कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं. The school. Ali likes going to school. His teacher is Miss Sana. She helps him to learn and read and to do mathematics. Do you people go to school? What is the name of your teacher? And what does she teach you? Miss Shamsa आपको उर्दू टीच करती हैं. Miss जोया आपको साइंस टीच करती हैं. इसी तरह बाकी टीचर्स भी आपको डिफरेंट लेसन्स टीच करती हैं. इसी तरह अली भी डेली स्कूल जाते हैं और उनको मिस सना मैथमेटिक्स टीच करती हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ द स्टोर. स्टोर क्या होता है? स्टोर वो शॉप होती है जहाँ से आप ग्रोसरी लेते हैं. आपकी मम्मा मंथली ग्रोसरी लेती है ना, वो स्टोर पे जाती हैं, लिस्ट लेके जाती हैं और वहाँ से अपनी सारी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो आपने घर पे किचन में और बाकी चीज़ जगहों पे यूज़ करना होती हैं वो लेती हैं. वो शॉप क्या होती है? वो एक्चुअली स्टोर होता है. क्या होती है? स्टोर. अली ऑफन गोज़ टू द स्टोर. मिस्टर सारिम इज़ द स्टोर कीपर. ही इज़ वेरी हेल्पफुल.
ही सेल्स द थिंग्स दैट पीपल नीड। स्टोर कीपर कौन होता है? वो जो शॉप पे खड़ा हुआ होता है और चीज़ें दे रहा होता है लोगों को। आप जाते हैं, आप स्टोर कीपर को पैसे देते हैं और वो आपको चीज़ें देता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टोर कीपर। अली की सोसाइटी में जो स्टोर कीपर हैं उनका नेम क्या है? मिस्टर सारिम। आपकी सोसाइटी में जो स्टोर कीपर हैं उनका क्या नेम है? देयर मस्ट बी अ स्टोर इन योर इन नियर योर हाउस। आपके मोहल्ले में, आपके विलेज में, आपके टाउन में बहुत सारे स्टोर्स होंगे। किसी स्टोर पे आप खुद भी जाते होंगे अपनी चीज़ें लेने, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने भी, और अपनी जो आपकी कैंडीज़ एट्सेट्रा आप लेने भी स्टोर पे जाते होंगे। तो वहाँ का जो स्टोर कीपर है उसका क्या नेम है? इज़ ही हेल्पफुल? वो आपकी हेल्प करता है? ऑफ कोर्स वो हमारी हेल्प करता है, वो हमें वो चीज़ें देता है जो जिनकी हमें ज़रूरत होती है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द स्कूल और द स्टोर, इनके साथ भी एरोज़ लगे हुए हैं, और उन एरोज़ के साथ क्या लिखा हुआ है? हेडिंग्स। आपको पता है किसी भी टेक्स्ट की हेडिंग क्या होती है? टाइटल होता है मेन टॉपिक, और उसके अंदर जो सब टॉपिक होते हैं, जो छोटे टॉपिक्स होते हैं, उनका जो नेम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेडिंग्स। इस लेसन में पीपल एंड प्लेसेस टाइटल है, और द स्कूल, द स्टोर, ये क्या है? ये हेडिंग्स हैं। ओके, ऑन नेक्स्ट पेज देयर इज अनदर हेडिंग विच इज़ द हेल्थ सेंटर। आपकी सोसाइटी में, आपके टाउन में कोई हेल्थ सेंटर है? जब आपको बुखार होता है या आपको फ्लू होता है तो आप हॉस्पिटल तो नहीं चले जाते ना, आप अपनी सोसाइटी के या अपना जो आपका टाउन है या विलेज है वहाँ पे आप किसी डिस्पेंसरी में जाते हैं, वो वहाँ आपका हेल्थ सेंटर होता है। अली एंड हिज लिटिल सिस्टर ऑफन गो टू हेल्थ सेंटर। द डॉक्टर एंड द नर्स हेल्प द फैमिली टू स्टे हेल्दी। के जो अली और उसके सिस्टर हैं वो हेल्थ सेंटर जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, जो उनकी सोसाइटी में कोई डिस्पेंसरी है वहाँ जाते हैं, और वहाँ के जो नर्स और डॉक्टर हैं वो उनको हेल्दी रहने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द बैंक एंड द बैंक, हेयर ड्रेसर एंड द गैस स्टेशन। आप कभी बैंक गए? नहीं जाते। आप गैस स्टेशन जाते हैं? नहीं जाते। These are some of the other places near Ali's house. Ali doesn't go to these places but his mummy and granddad do. आपकी भी मम्मी जाती होंगी बैंक, या आपके डैडी बैंक जाते होंगे, या आपके ग्रैंड डैड जाते होंगे। आपकी मम्मी, आपके डैडी और आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं अपना हेयर कट करवाने के लिए, वो हेयर ड्रेसर होता है। एंड द गैस स्टेशन, गैस स्टेशन पे कौन जाता है आपकी फैमिली में? डू योर फैमिली यूज़ गैस इन योर किचन और इन योर कार? वो वाली गैस कहीं से फिल करवाते हैं ना, वो होता है गैस स्टेशन। ये गैस कहाँ से फिल होती है? गैस स्टेशन से। सो अली भी इन जगहों पे नहीं जाते, अली भी बैंक में नहीं जाते, और उनकी भी मदर या उनके ग्रैंड-डैड जाते हैं, और अली गैस स्टेशन नहीं जाते लेकिन उनकी मदर और ग्रैंड-डैड जाते हैं। और आप मुझे ये बताएं कि बैंक किसे कहते हैं? बैंक वो जगह होती है जहाँ पे लोग अपने पैसे सेव करने के लिए जाते हैं। लोग वहाँ पे अपने पैसों को सेव कर लेते हैं ताकि कोई उनसे छीन ना ले या कोई उनसे चुरा ना ले। लोग अपने घरों में पैसे सेव नहीं करते, वो कहाँ पे सेव करते हैं? बैंक में। बैंक वो जगह होती है जहाँ पे लोग अपने पैसे सेव करते हैं, अपनी मनी सेव करते हैं। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चंस. You will write down these questions and their answers in your classwork notebook. So prepare your classwork page and write down the questions. First question is, what is the title of this passage? इस lesson का title क्या था? Yes, it is People and Places. Question 2 is, what are the 4 main headings? जो 4 मेन हेडिंग्स है इस लेसन की वो कौन कौन सी हैं? द स्कूल, द स्टोर, द हेल्थ सेंटर एंड द बैंक. क्वेश्चन 3 इज, व्हाई डू अली एंड हिज सिस्टर गो टू हेल्थ सेंटर? अली और उसकी सिस्टर हेल्थ सेंटर क्यों जाते हैं? दे गो टू रूटीन चेकअप. दे गो टू रूटीन चेकअप.
Question number 4 is, why do you think Ali's mummy goes to the hairdresser, the gas station? अली की मम्मी हेयर ड्रेसर के पास क्यों जाती हैं और गैस स्टेशन पे क्यों जाती हैं? हेयर ड्रेसर के पास जाती हैं टू गेट अ हेयर कट, टू गेट अ हेयर कट। गैस स्टेशन पे क्यों जाती हैं? टू गेट द गैस फिल्ड इन सिलेंडर, टू गेट द गैस फिल्ड इन सिलेंडर। Question 5 is, which of these words mean the same as healthy? Healthy का क्या मीनिंग होता है? Happy और well और tired। Healthy किसे कहते हैं? जो happy होता है उसको healthy कहते हैं, या जो ठीक ठाक होता है उसे healthy कहते हैं, या जो थका हुआ होता है tired होता है उसे healthy कहते हैं। Yes, this is well. Healthy means well, यानी कि जो बिल्कुल ठीक ठाक होता है। Have you written all these question answers? Okay, now let's discuss our today's homework. So please open your diary, mark date and subject is English, and then note down your diary, which is, okay, we have done question 1, 2, 3, 4 and 5 in our notebook. You have to learn all these questions. Then you will do question number 6 in your homework notebook. And question number 6 is, what important places are there near your house? आपके घर के आसपास कौन कौन से important places हैं? आप उन places के names write down करेंगे. Then another homework is from workbook. You have to do page number 78 and 79 from your workbook. Okay, dear grade 1 students, good luck for your homework. Allah Hafiz.